What are rights? What is difference between rights and fundamental rights? USA the judiciary, world the strongest judiciary. UK the parliament is the world's strongest parliament. To know all these in details, stay tuned with us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਫॉर ਬੈਟਰ ਟੁਮਾਰੋ ਵਿਦ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਟੀਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਇਮਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, टाइम है जी जून 1215। किंग जॉन, ठीक है, किंग जॉन ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂਅਲ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਸਟ ਕਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਕਿੰਗ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਚੀਫਸ ਨੂੰ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਅਰਡ ਖਿੱਚਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਸ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਕਿੰਗ ਜੌਨ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਫਰਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, USA ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ also known as Magna Carta of Indian Constitution। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਸ। ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਲੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ। ਇਨੀ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ। ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੀਏ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ। ਐਜ਼ ਦੀ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰੋਡਰ ਟਰਮ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ।
ठीक है जी। हुण देखो किसी इंसान दे कोल रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ां वधिया है, ठीक है, बट वो जो मंदिर च जान लगता तो मंदिर का गेट बंद कर लिया जाता है, वो अपनी चाह वाली दुकान पर जाता है तो उन्होंने कहा जाता है कि तुसी साइड ते बैठ जाओ, ठीक है, डैट इज़ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब उस परसन को रोटी कपड़ा मकान है बट उनकी रिस्पैक्ट नहीं है सोसाइटी दे विच कि वो एक वधिया जस्ट एंड फेयर लाइफ इंजॉय कर सकता है। इहदा आंसर है जी नहीं। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। फंडामेंटल राइट्स are rights which are fundamental to the existence of human being and also they are protected by fundamental law of land, ठीक है जी। fundamental rights are the rights which are fundamental to the existence of human being and also they are protected by fundamental law of land। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ fundamental law of land ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ fundamental law of land is nothing but our constitution, संविधान है जी ये, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पर किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। एज द नेम सुजेस्ट फंडामेंटल राइट्स दे आर फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्रोटेक्टेड एंड ग्रंटेड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड दैट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सी अपनी डेफिनेशन। नैक्सट देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा यह बनूगा जी ये कॉन्स्टिट्यूशन के किहड़े पार्ट दे विच है, पार्ट 3। अगला क्वेश्चन तुहाडा बनूगा जी किहड़े आर्टिकल इहदे विच आउंदे आ, तो आर्टिकल 12 तो 35 जिहड़े कि अज आपां डिस्कस भी करांगे। तो आर्टिकल 12 तो 35 सारे की है अपने फंडामेंटल राइट्स नाल रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आऊगा जी ये जिहड़े फंडामेंटल राइट्स है ये आपां किहड़ी कंट्री तो लए, तो आंसर है जी USA। USA अमेरिका तो आप फंडामेंटल राइट की प्रोविजन लीती, ठीक है। USA दे विच फंडामेंटल राइट्स नूं कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, ठीक है जी। USA च कहा जाता बिल ऑफ राइट्स। तो आप इन्हां तो ही जिहड़ा फंडामेंटल राइट की प्रोविजन लीती है, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। ये पार्ट 3 च है आर्टिकल 12 तो 35 एंड USA तो आप ये लेते हैं। एक और चीज़ आ जाती है these are justiciable, फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल। देखो जी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है PCS दे विच फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल, ये सही है कि नहीं, तो गलत हो जाएगी। क्यों जस्टिसिएबल का मतलब की होंगे जी कि तुसी फंडामेंटल दी राइट्स दी वायलेशन नूं लैके फंडामेंटल राइट चाहे तुहाडा वायलेट हो रहा है, चाहे तुहाडे रिलेटिव्स, चाहे किसी भी परसन का जिहड़ा तुहाडे आस पास सराउंडिंग दे विच है, तुसी उस परसन का या आपदा वायलेशन नूं लैके तुसी हायर जुडिशरी नूं अप्रोच कर सकते हो। हुण तुहाडे मन च क्वेश्चन होएगा वट इज़ हायर जुडिशरी, ठीक है जी। हायर जुडिशरी आप कहने हैं जी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नूं, उहदे च डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं आउंदियां, ठीक है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों नूं मिला के की हुंदा हायर जुडिशरी, ठीक है जी। ये सीगा अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे जिहड़े क्वेश्चन अपने को पूछे जा सकते हैं। इस तो बाद आप गल करते हैं आर्टिकल 12 की, आ तुसीं नोट कर सकते हो, टेक योर टाइम। आर्टिकल 12 देखो जी आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वर्ड यूज़ किया है
ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇੰਟਾਇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਟ। ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ? ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ, ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਦੀ? ਸਟੇਟ ਦੀ। ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਬਸ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੱਸਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਸਟੇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? देखो जी, वो कहता स्टेट कोई भी अपनी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब यूनियन लैजिस्लेचर, स्टेट लैजिस्लेचर, लोकल बॉडीज़ की आ जाता पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है जी, अदर बॉडीज़ लाइक LIC, मतलब इहदे कोई होर भी आप ऐड कर सकते हैं बॉडीज़। ठीक है, तो इदां दे जिहड़ियां अपने कोल ये सारा की है स्टेट है। मतलब की है, हुण मैं गल करां भी स्टेट लैजिस्लेचर है जिहड़ी, ठीक है, तो वो तुहाडे नाल जे पक्षपात कर रही है किसी चीज़ से, तुसीं ये कह लोगे तो उन्होंने वर्ड यूज़ कर सकते हो भी स्टेट मतलब स्टेट डन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भी उन्होंने की किया? डिस्क्रिमिनेट कर दी, तो उस स्टेट लैजिस्लेचर नहीं कहांगे उन्होंने, आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टेट। एक LIC ने एक पॉलिसी बनाती। ठीक है, भी LIC ने एक अपन पोस्टां कड्डियां, उहदे च कहता भी अपने कोल मुंडे नहीं अपलाई कर सकते, कुड़ियां अपलाई कर सकदियां। ये की है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैक्स। इहदे विच आपां ये नहीं कहांगे भी LIC ने आ कीता, कहांगे स्टेट डिड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो की है LIC उस टाइम ते की बन जूगी? स्टेट बन जूगी। जे कोई स्टेट लैजिस्लेचर कुछ कर रहा तो वो स्टेट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? ये डेफिनेशन है स्टेट की। इन्हां चों कोई भी स्टेट हो सकता है। ठीक है, ये स्टेट नूं कन्फ्यूज़ नहीं करना, पंजाब हिमाचल एवें दा स्टेट नहीं है। ये स्टेट की है? जो कि है इन्हां चारां दे विचों कुछ भी हो सकता है। अदर बॉडीज़ दे विच भी होर बॉडीज़ भी हो सकती हैं अपनी। ठीक है जी, ये अपना की सीगी आर्टिकल 12 जिंदे च आपां देखिया भी उन्होंने डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी दित्ती है, तो स्टेट की है वो आ चीज़ है। ठीक है, नैक्सट आपां देखांगे जी आर्टिकल 13। Article 13 talks about जुडिशियल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, हुण आर्टिकल 12 तो 35, ठीक है जी, आर्टिकल 12 तो 35 दे विच कोई भी जिहड़ी प्रोविजन आ रही है अपनी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, ठीक है, कोई चेंजेस आ रही हैं, तो अपने इस ऊपर की बैठा है? जुडिशरी बैठी है। ठीक है, तो जुडिशरी की है उस लॉ नूं की है देखेगी, तो उन्होंने की कह दें जुडिशियल रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई अपना एक लॉ है, ठीक है, जिहड़ा कि अपना पुराना चल रहा है 1950 तो पहला, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने तो पहला चल रहा सी। ठीक है, उहदे च की सी अपनी एजुकेशन का कोई लॉ सी, जिंदे विच उन्होंने कहा सी भी 6 to 14 ईयर एज दे विच बच्चों की फीस लगेगी। ठीक है जी, बट उस तो बाद जो आप गल करिए, आप तो फंडामेंटल राइट से कहता भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, बट जोड़ा हूँ पुराना लॉ से अपना उहदे की है जुडिशरी की है एक्शन लेगी, तो वह पुराने जोड़े लॉ की जी क्लॉज सी जिंदे लिखा
6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੀ, ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੋਗੀ। मतलब ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, 13ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14। ठीक है जी, ये डिस्कस करने तो पहला एक छोटी जी तस्वीर अपने दिमाग दे विच लियाओ। जो भी आप जो भी आप पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, सारे ने देखा होगा लेडी जस्टिस। ठीक है, लेडी जस्टिस दे की है, अख ते की है, अखा ते पट्टी बन्नी हुंदी है। ठीक है, उनका मतलब की है, उनका मतलब ये है जी भी कानून की निगाह दे विच सारे की है बराबर है, तुसी हो मैं हो, कोई पॉलीटिशियन है, कोई सिंगर है। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यही अपना की कहता आर्टिकल 14 कहता। बट आर्टिकल 14 दो चीज़ों को डिस्क्राइब करता, आप दोनों डिस्कस करांगे भी जी इक्वैलिटी है उनके दो कंसैप्ट है। एक है जी इक्वैलिटी बिफोर लॉ, एक है जी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वैलिटी एंड दिस इज द पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ इक्वैलिटी। देखो जी इहदे चों की कहंदा कि सारे कानून की निगाह दे विच की है बराबर है। इहदे च की कहंदा है भी आपां नूं सारिआं नूं कानून की निगाह च बराबर बनाउणा पैना है, मतलब इक्वल प्रोटैक्ट करना पैना इक्वैलिटी नूं। दिस इज द पॉजिटिव कंसैप्ट। ये की कहंदा है भी जे इनइक्वैलिटी हो गई उन्होंने प्रोहिबिट करो, इक्वैलिटी नूं लियाओ। ठीक है जी, तो अपने दो कंसैप्ट है, इक्वैलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ। इक्वैलिटी नूं दो पार्ट्स में डिवाइड करता आर्टिकल 14। बट तुसी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल यही याद रखना है कि आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वैलिटी बिफोर लॉ। ठीक है जी, इनकी एग्जाम्पल है जी लेडी जस्टिस। ठीक है जी, लेडी जस्टिस इहदे विच तुसीं एग्जाम्पल तुहानूं मैं दे रहा। देखो जी, एक 7th क्लास एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, एक 10th क्लास पढ़ रहा है। ठीक है, उनके नाल आपां सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तां करके की है आपां नूं इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ करनी पैनी है। जो लॉ उनके लिए सही है, ठीक है, उन्होंने करना पैना, तो जे कोई दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो उनके लिए अलग है। मतलब इहदे च की है सारिआं नूं बराबर मन के चलीदा है। इहदे च की है डिपेंड करता है परसन टू परसन। ठीक है, आपां नूं वो इक्वैलिटी नूं मेनटेन करने लिए। ठीक है जी, दिस इज इक्वैलिटी बिफोर लॉ, एग्जाम्पल लेडी जस्टिस। दिस इज इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ। इहदे आप डिमांड करते हैं भी इहो ਜਿਹੇ लॉ बनाए जाण जिहदे नाल की है इक्वैलिटी अपनी प्रिवेलेंट रहे सोसाइटी दे विच, ते सारिआं नूं ही इंडिविजुअल लैवल ते ध्यान च रखिया जाए, सारिआं नूं इक्को बराबर ना समझिया जाए। होप तुहानूं पॉइंट क्लीयर हो गया होगा। दिस वाज आवर आर्टिकल 14। तुसीं याद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की रखना है, आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वैलिटी बिफोर लॉ। बट तुहाडे दिमाग दे विच कंसैप्ट जरूर क्लीयर होना चाहिए है कि वट इज़ इक्वैलिटी बिफोर लॉ एंड वट इज़ इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ। इहदे सारिआं नूं ध्यान च रखते हैं, इहदे सारिआं नूं ही कानून की निगाह दे विच की अपने कोल इक्वल मन्निया जाता है। ठीक है जी, नैक्सट आपां देखते हैं आर्टिकल 15। देखो जी, आर्टिकल 15 रीड करता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर किहड़े है जी? रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सैक्स। देखो हुण आह वाला स्टेट की है,
पिछले लैक्चर च आप देखा आ वाला स्टेट पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला स्टेट नहीं है जी। ये स्टेट की है जो आप डेफिनेशन के देखा, इट कैन बी स्टेट लैजिसलेचर, इट कैन बी यूनियन लैजिसलेचर, इट कैन बी यानी पंचायती राज, ठीक है, एंड इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक LIC, ठीक है जी। तो वो स्टेट की है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अपने 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, जोड़ा रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सैक्स। हुण तुसीं देखोगे PCS की वैकेंसी आई हैं, ठीक है, PCS की वैकेंसी के की है SC एंड OBC कैटेगरी को फीस घट प्रोवाई जा रही, ठीक है जी। कई SSC का पेपर होंगे जी, गर्ल्स लिए की है वो फ्री होंगे, बॉयज़ को की है अपना की है पैसे देने पैंदे हैं। तो तुहाडे दिमाग च क्वेश्चन आएगा वाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैक्स, भी कुड़ियां लिए तुसीं फीस नहीं रख रहे, मुंडियां लिए तुसीं फीस रख रहे हो, ठीक है। तो उनका आंसर यह है जी, इस 15 आर्टिकल के नाल उन्होंने ये भी लाइन लिखी है भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ अलाउड, भी जेड़ा की है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हुण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपने जेडे कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस है उन्होंने ये दसिया भी जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो अपनी इनइक्वैलिटी को खत्म करने के लिए है, ठीक है। जोड़े अपने सैक्ट है लाइक विमेन, ठीक है, अपने चिल्ड्रन हो गए, उन्होंने भी उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए अगर कोई गवर्नमेंट नू या किसी स्टेट नू डिस्क्रिमिनेट करना पै रहा है तो दे कैन डू, तो दैट थिंग इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी। तो ये अपना सीगा आर्टिकल 15, तुसीं नोट कर सकते हो। नैक्सट आप देखते हैं आर्टिकल 16 के बारे। Article 16 reads as equal opportunity in public employment। देखो जी, हुण कोई भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है, PCS का एग्जाम आ रहा है, SSC का आ रहा है, UPSC का आ रहा है, ठीक है। तो उहदे विच की है आपां सारिआं नूं की है इक्वल अपॉर्चुनिटी की है इस आर्टिकल 16 इंश्योर करता है। हुण उन्होंने भी इहदे भी फैक्टर्स दसे है भी किहदे बेस ते जिहड़ा स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो जिहड़े पुराने ही अपने रेस, कास्ट, रिलीजन, सैक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो 5 पुराने ही हैं जिहड़े आर्टिकल 15 के विच कीते। 2 होर ऐड करते उन्होंने जी, एक डिसेंट तो एक रेसीडेंस। फॉर एग्जाम्पल पंजाब PCS की गल करते हैं, पंजाब PCS का पेपर निकलिया, हुण एक हिमाचल वाला स्टूडेंट अपने PCS का पेपर देना चाहता है, ठीक है, तो उन्होंने रेजीडेंस के बेस पर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर आप डिनाई नहीं कर सकते, स्टेट कैनॉट डिनाई। हुण इहदे च स्टेट की है, इहदे च स्टेट PPSC है, ठीक है, तो ये चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो वह की है उन्हें वो भी अप्लाई कर सकता प्रोवाइडेड जो कंडीशनस है वो की है फुलफिल करता हो। इन केस ऑफ पंजाब उन्होंने 10th के पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए है, ठीक है जी। होप आर्टिकल 16 तुहाडा क्लीयर हो गया होगा। जी पब्लिक इंप्लॉयमेंट की गल करांगे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए है। इन्होंने जोड़े अपने 6 क्राइटेरिया अपना इन्हों के अगेंस्ट की है डिस्क्रिमिनेशन कोई स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। नैक्सट विल टॉक अबाउट आर्टिकल 17, तुसीं यह नोट कर सकते हो। Article 17 read as abolition of untouchability। देखो जी आर्टिकल 7 अपन कहता है, आर्टिकल 17 कहता है भी अनटचबिलिटी प्रैक्टिस एनीवेयर इन द इंडिया इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब की है जी अपनी अनटचबिलिटी स्टार्टिंग तो प्रिवेलेंट है, हिंदूइज़म के स्टार्ट हुई सी जो अपने वर्ना सिस्टम आए, ठीक है। शूदर्स नूं की है मंदिरों के नहीं जान दिता जाता सीगा, दुकानों के एंट्री नहीं होने दी जाती सी। वो अपनी महात्मा गांधी ने भी कहा सी कि दिस इज़ अनटचबिलिटी इज़ अ सिन ऑफ हिंदूइज़म, ठीक है जी। तो हिंदूइज़म तो ही अपने वर्ना सिस्टम सारा स्टार्ट होया सी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने 1950 तो बाद ये प्रोविजन दिता भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उस तो बाद अनटचबिलिटी किसी भी अपने फील्ड के विच किते भी इंडिया के किहड़े भी पार्ट के विच वेखण नूं मिलदी है तो डैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस,
ठीक है। हुण आपां देखदे हां फॉर एग्जाम्पल कि कोई तुसी किते भी जा रहे हो, ठीक है, तुसी शॉप ते किसे गए, उत्थे एक होर परसन एक समान लैन आ रहा है, तो उन्हें मास्क नहीं पाया होया, ठीक है, तो कफिंग कर रहा, ठीक है, तो या स्नीजिंग जो भी है, तो जे तुसी उन्होंने कह रहे हो भी सर तुसी थोड़ा जिहा साइड ते हो जाओ, ठीक है, या तुसी दुकान तो बाहर चल जाओ, डैट इज़ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। देखो एक बारी गल सुनो भी जिवें हुण आपां करोना के टाइम दे विच सारे नाल की कह रहे हैं भी आपां नूं सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए है, जे कोई मास्क नहीं पहनता तो आपां कहने भी तू साइड ते हो जा बाहर चल जा, ठीक है, तो इहदा मतलब तो यह हो गया भी आपां अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अपने अगेंस्ट आर्टिकल 17 के अगेंस्ट अपने रिट जारी हो सकती है। बट इहदे च एक केस सीगा जैन सिंह वर्सिस यूनीयन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये कहा भी जो अपना अनटचेबिलिटी है ना, इनू ग्रामैटिकल सेंस दे विच नहीं लेना, अनटचेबिलिटी नू ग्रामैटिकल सेंस दे विच नहीं लेना, जे अपने कोमे ना होंदे तो अनटचेबिलिटी ग्रामैटिकल सेंस दे विच हो जाती। कोई भी किसी को कहता भी तुसी साडे इत्थे दुकान ते नहीं होना, ठीक है, मास्क पा के आओ, सारा अनटचेबिलिटी हो जाता है। बट उन्होंने कोमा पाता तो यह कहता जैन सिंह वर्सिस यूनीयन ऑफ इंडिया केस दे विच भी जिहड़ा अनटचेबिलिटी है ये की है ग्रामैटिकल सेंस दे विच नहीं है, ठीक है जी। अनटचेबिलिटी ग्रामैटिकल सेंस दे विच नहीं है, अनटचेबिलिटी कास्ट रिलेटेड है, ठीक है। कास्ट रिलेटेड कोई भी अनटचेबिलिटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो की हो जाएगा, अपना क्राइम हो जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है जी। तो तुसी याद की रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल सिर्फ इको चीज़, आर्टिकल 17 डील्स विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट अपने को आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो जी पहला आज़ादी तो पहला जिहड़े अपने ब्रिटिशर्स सीगे वो कुछ के जिहड़े इंडियन सी, तुसी पंजाबी च कह सकते हो, जिहड़े उन्हां दे चमचे सी, ठीक है, उन्हां नूं टाइटल्स दिंदे सी, ठीक है जी। तो की करते सी, टाइटल्स दिंदे सी टू क्रिएट इनइक्वैलिटी इन सोसाइटी, ठीक है। जिहड़े पर्सन उन्हां दी हैल्प करते सी या उन्हां नाल रहिंदे सी, ठीक है, उन्हां नूं टाइटल्स दिंदे सीगे अंग्रेज टू क्रिएट इनइक्वैलिटी इन सोसाइटी। तो वो प्रोविजन जिहड़े अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे सी तो वो प्रोविजन खत्म करने की कोशिश की बाय एडिंग आर्टिकल 18, जिन्हें उन्होंने कहा भी हुण कोई भी टाइटल किसी भी परसन नूं नहीं दिता जाएगा जिंदे नाल की है सोसाइटी दे विच इनइक्वैलिटी क्रिएट होवे, ठीक है जी। तो उहदे च आपां देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल महाराजा, ठीक है, महारानी, ये वाले टाइटल की है अपने हुण अबोलिश कर दिते गए। हुण तुसीं कहोगे जी मैं 5 साल लाए PhD की, तो मैं एक टाइटल गेन किया डैट इज़ डॉक्टर। तुसीं कहोगे जी लाइक कोई परसन ने बहुत वधिया काम किया, उन्होंने पद्म श्री गेन किया टाइटल, ठीक है, पद्म विभूषण किया, भारत रत्न किया, ठीक है, भारत रत्न किया। तो हुण इहदे च की है जिहड़े ये वाले टाइटल्स है, ठीक है, एकेडैमिक टाइटल्स एंड मिलिटरी टाइटल्स, ये इनके एंबिट चो की है बाहर है। कोई भी एकेडैमिक टाइटल्स है, तुहाडा डॉक्टर है PhD तो बाद तुसीं डॉक्टर अपने नाम दे अगे लगा रहे हो, तुसीं लगा सकते हो, ठीक है जी। मिलिटरी टाइटल है कोई कर्नल, ठीक है, ब्रिगेडियर, ये जिहड़े की आपां लगा सकते हैं। उस तो बाद जिहड़े प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो अपने कन्फर्म होंगे लाइक भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये की है सारे टाइटल आप लगा सकते हैं। बट वो जो टाइटल नहीं लाने, ठीक है, जिंदे नाल की है अपनी इनइक्वैलिटी क्रिएट होवे, क्योंकि ये तो तुसीं अपनी मेहनत नाल टाइटल अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो ये अपने की है इनइक्वैलिटी क्रिएट नहीं करते, ठीक है जी। तो ये सीगा याद की रखना तुसीं इको चीज़, आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है जी। तो नैक्सट आप देखते हैं आर्टिकल 19। हुण आर्टिकल 19 तो पहला देखो कि जिहड़े आपां पहला 14 तो 18 आर्टिकल किते,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ 19 ਤੋਂ 22 ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਫਰੀडम। ठीक है जी। तो आर्टिकल 19 आप देखते हैं। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। देखो जी बहुत सारे प्रोविजन होंगे आर्टिकल 19 के अपने को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन याद की रखना है भी आर्टिकल 19 कहते ना डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन नाल। हुण बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ी आर्टिकल 19 आपां नूं इन्फर करता आप देखते हैं की है। सब तो पहला आप देखांगे जिहड़ी मीडिया की अपनी कोल आज़ादी है। ठीक है। तो वो इस आर्टिकल के अंडर कवर होंदी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है जिहड़ा वो इस आर्टिकल के अंडर कवर होंदा है। ठीक है। राइट टू फॉर्म यूनियन वो इस आर्टिकल के अंडर इनकलूड होंदा है। ठीक है जी। हुण आपां कोई देखदे हो हड़ताल करते आपां। ठीक है। मतलब वो भी सारा किहदे च आ जांदा है, आर्टिकल 19 दे विच आ जांदा। वो अपना डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है जी। तो ये सारिया चीज़ां किहदे च आ जाणगीआं अपने आर्टिकल 19 दे विच जिहड़ा टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। आप इहदा देख लैंदे की इहदे विच आ जाएगा। फस्ट ऑफ ऑल आही आ गया स्पीच एंड एक्सप्रैशन। सैकेंड आ गया जी अपने कोल राइट टू फॉर्म कोई असैम्बली। ठीक है। थर्ड इहदे च अपने को आ गया राइट टू फॉर्म यूनियन। ठीक है। होर आप इहदे च लिख सकते हैं रिसाइड एंड सैटलमेंट एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है जी। होर आप इहदे च लिख सकते हैं कोई भी प्रोफैशन ऑक्यूपेशन। ठीक है। चूज़ करने की अपने को आज़ादी है। ठीक है जी। देखो जी कोई तुसी किसी दे अगेंस्ट एक असैम्बली। ठीक है। जिन्हों जलूस कह दें आप पंजाबी दे विच। ठीक है। वो करना चाह रहे हो डैट इज़ योर डेमोक्रेटिक राइट अंडर आर्टिकल 19। स्पीच एंड एक्सप्रैशन तुसी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तुसी अपने व्यूज़ अपने रख सकते हो। ठीक है। डैट इज़ अंडर स्पीच एंड एक्सप्रैशन। उस तो बाद है जी राइट टू फॉर्म यूनियन। तुसी कोई भी यूनियन ट्रेड यूनियन बना सकते हो, कोई किसी भी तरह की यूनियन बना सकते हो। दैट रिसाइड एंड सैटलमेंट एनीवेयर इन इंडिया। ये देखो जी रिसाइड एंड सैटलमेंट है ये प्रोविजन नहीं है कि तुसी प्रॉपर्टी भी किते भी लै सकते हो इंडिया दे विच। क्योंकि तुसी देखिया होगा जिहड़ा हिमाचल की प्रोविजन ये है कि हिमाचल दे विच आपां की है जिहड़ी लैंड है नहीं लै सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। तुसी इहनूं इहदे नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना भी इत्थे तां ये लिखिआ है रिसाइड एंड सैटलमेंट एनीवेयर इन इंडिया। तुसी किते भी जाके रह तां सकदे हो बट प्रॉपर्टी जिहड़ी है हिमाचल दे विच तुसी जिवें अपनी नाल दी गल करिए। ठीक है। भी हिमाचल दे विच आपां प्रॉपर्टी नहीं लै सकदे तां उहदे अगेंस्ट है चीज़। ठीक है जी। इहदा मतलब की है भी किते भी आपां रह सकते हैं तो जिहड़ा प्रॉपर्टी वाला सीन की है वो इहदे विच फंडामेंटल राइट अपना वो नहीं हैगा। ठीक है। नैक्सट है जी कोई भी प्रोफैशन ऑक्यूपेशन आप चूज़ कर सकते हैं। ये आप किया आर्टिकल 19। ठीक है जी। नैक्सट आप देखते हैं आर्टिकल 20। BN राव अपने कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र उन्होंने जो आर्टिकल 20 लिखना सी तो उन्होंने एक एडवाइस दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नूं भी जिहड़ा अपने तीन चीज़ां डैट इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड सैल्फ इनक्रिमिनेशन भी वो कहते BN राव ने एक्सप्लेन किया भी जिहड़े ये तीन प्रोविजनस है ना ये जिहड़ियां अपनियां बाकी दी कंट्रीज़ है सारियां ये की है ये वाली प्रोविजनस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हैगियां तो आपां नूं भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ये प्रोविजनस की है ऐड करनियां चाहिए। हुण आपां एक एक करके देखते हैं जी इन्हां दा मतलब की है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है।
ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਫਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 2000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 500 ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 500 ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, नो डबल जियोपार्डी। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी एंड नो सैल्फ इनक्रिमिनेशन, ठीक है जी। ये आप 14 तो लैके 20 तक आर्टिकल अज किए हैं। नैक्सट लैक्चर तो आप गल करांगे आर्टिकल 21 डैट इज़ राइट टू लाइफ, ठीक है जी। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच।